Hi guys, welcome back. Well, today I'm not well because I have cough and cold, and I have nasal congestion because of which you might hear a kind of nasal accent. So please ignore, and I'm sorry for that. But I will try to speak slow so that my voice, my sound will be clear, and it will be easy to understand. Okay, great. So today in this session, I'm now going to talk about a topic which is for those who really don't have time when it comes to learn English. Okay. Yeah. You may have the same question, same problem that, hey guys, I just want to learn English. I want to speak English. I want to learn it, but I don't have time. So I am very busy. I have tight schedules. I have list of activities throughout the day. So I can't manage time to learn English. Yeah, fine. No problem. This video is going to help you in that. Okay. So please don't go anywhere. Just watch this video till the end of the video, and by end of this video, you will get to know how to manage it. Okay. So time management is not about only managing time, and time is money. It's not about time is money. Do not try to limit that phrase, right? So time is actually a value management. Yeah. So time is where the value is. Yes. So the more important you consider something, the more time will start supporting you in achieving that. Okay. That's the fact. Maybe you keep saying that spending some time, spending time in a library and reading books is a very good habit. Yeah. Uh, Playing cricket is a good habit. Going to a gym is a good habit if you want to stay fit, right? But you're not doing those things. It means you're not giving value. You don't know the importance of it, right? So you're just saying these things for the sake of saying, right? You're not doing those. So it's just a superficial declaration. Internally, maybe possible. Internally, you're watching some kind of vulgar videos. So I'm quite interested to watch some kind of vulgar videos, some kind of vulgar contents. So you are interested to watch those sort of videos, and you keep saying something else. So now understand here the difference is the value. You don't realize the value of something that you want to achieve it. That's the reason you can't manage time. Time is automatically managed when you know the importance and the value of that thing. Okay. And it is not about only English. It's about everything in your entire life. Yes. So today I would like to speak in Hindi also. Okay. Uh, इंग्लिश सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता कि इंग्लिश आपको सीखनी क्यों है। बिना इंग्लिश सीखे भी काम चल सकता है, लाइफ बड़े अच्छे से कट सकती है, राइट? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ऑलराइट? What is the value addition if you learn English? What value you are adding to it? That you need to understand. If you don't value it, your time will not support. Okay. Time management is not about being punctual. Of course, being punctual is also necessary. It's one of the elements which comes under the time management. But time management is uh, it's related to value. So in the center, value is sitting. Importance of doing something is sitting. Okay, so you need to understand that. Then your time will automatically be managed. Managing time is not a difficult task. First, managing the value of learning something is difficult. Yes. तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है और इंग्लिश
सीखने के लिए टाइम आपको अपने आप मिल जाती है जब आपको ये पता होता है कि इंग्लिश मुझे सीखनी है बिकॉज ऑफ दीज मेनी थिंग्स, लिस्ट ऑफ रीजंस। ओके, अब बहुत ही सुपरफिशियल रीजन हो कि भाई मुझे भी इंग्लिश सीखना है बिकॉज इट साउंड्स गुड, मुझे थोड़ा इंप्रेशन जमानी है, मुझे मार्केट में जाता हूँ तो मुझे इंग्लिश बोलते हैं तो मैं मुझे वहाँ समझ नहीं आती या मैं बोल नहीं पाता, दैट्स स्टूपिड रीजन, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बिकॉज वहाँ वहाँ उस जगह के लिए आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है? अगर कोई बंदा आपको इंग्लिश में सिर्फ बात कर रहा है जहां पर इंग्लिश की कोई जरूरी नहीं, आप हिंदी जानते हैं, अगला बंदा भी इंग्लिश जानता है, हिंदी भी जानता है, ठीक है, फिर भी वो इंग्लिश बोलता है, तो प्रॉब्लम उसकी है, क्योंकि वो शो ऑफ करना चाह रहा है, प्रॉब्लम उसकी है, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको है। आपको टेंशन नहीं लेने का, आप बिल्कुल देसी में बोलिए भाई कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बात करेंगे, हिंदी भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का, क्या दिक्कत है आपको हिंदी बोलने में? राइट? तो इंग्लिश क्यों बोले? आप यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी एयरपोर्ट पे आप खड़े हैं, आप बोलिए कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं एयरपोर्ट पे, क्या किसी को हिंदी नहीं आती क्या? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? फिर अंग्रेजी हो गई वो। बट आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हिंदी में बोल सकते हैं कि आप क्यों इंग्लिश में बोल रहे हैं आप? कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेस पे अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है जहां पे कोई जरूरत नहीं है उसकी, आप जस्ट यू आर्ग्यू, why the hell he is speaking in the, English to you? No, there is no need to speak in English. Yeah, इंग्लिश एक भाषा है, इसको इतना सर पे नहीं चढ़ाना होता है, एक जस्ट एक लैंग्वेज है, एक जरिया है, जिसको जरूरी है, जिसको अपने जॉब में जरूरी है, जिसको अपने बिजनेस में जरूरी है, या कहीं उसका इंटरनेशनल बिजनेस है, कहीं उसको जाना आना होता है, वहां जरूरी है, बच्चों को सिखानी है, स्कूल में सिखानी है, प्रोफेसर है, आपको इंग्लिश पढ़ानी है, ठीक है, तो ये सारी चीज करनी है, अगर आपको आपका काम ऐसा है तो बिल्कुल आप सीखिए, ऐसे शौक से नहीं होता कुछ, ऐसे नहीं होता है, इसीलिए आप इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, और आप लग जाते हैं किसी कोचिंग में, एनरोल हो जाते हैं और वहां पर टाइम पास कर लेते हैं 6 मंथ्स, पैसे दे देते हैं उनको। और दूसरी चीज ये भी है, जानने की बात यह है, बहुत मजेदार बात है कि इतने इंडिया में इंस्टीट्यूशन है इंग्लिश का, इतने यूट्यूबर्स हैं, राइट, बट कभी आपने सोचा है कि इतने यूट्यूबर्स, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, बट फिर भी इंग्लिश में, इंग्लिश इंडिया में इतना कम रेशियो क्यों है बोलने वाले, अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले की रेशियो इतनी कम है, 10-15% है, बस बस इतने ही लोग इंग्लिश बोलते हैं अच्छी इंग्लिश, बाकी ऐसे ब्रोकन इंग्लिश थोड़ा और बोल लेते हैं लोग, बट 10 to 15% is the ratio, the percentage of Indian population who speak good English। क्यों इतना कम, क्यों? जब इतने इतने सालों से इतने जगह पर हर गली गली में इंस्टीट्यूशन है, हर जगह आप यूट्यूबर्स फैले हुए हैं लोग, क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप किस जगह पे हैं, आपका पोजीशन क्या है, आप किस जगह पे हैं, आपको खुद नहीं पता, आपको आत्मज्ञान नहीं है ना, आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि आप किस जगह पे हैं, और आप फोन लगा रहे हैं किसी बंदे को कि भाई मुझे बताओ मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट लेफ्ट लूँ, राइट लूँ, स्ट्रेट जाऊँ, पीछे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या समझ नहीं आता, कैसे बता पाएगा? आपको खुद नहीं पता कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं, आप जब तक उस बंदे को अपनी पोजीशन नहीं बताइएगा तब तक वो गाइड नहीं कर पाएगा, कैसे कोई बंदा आपको बता पाएगा कि लेफ्ट लो या राइट लो? यही पोजीशन है हमारी लाइफ में, हमें ये पता ही नहीं कि हम है क्या, राइट, हु आई एम, हमें ये नहीं पता कि हम है क्या, हमें ये नहीं पता कि हमें क्या आती है, हम एक्सटर्नल अवेयरनेस में ज्यादा बिलीव करते हैं, इंटरनल में कम करते हैं, इंटरनल मजबूत होने में हम कम ध्यान देते हैं, एक्सटर्नल हम ज्यादा ध्यान देते हैं, और एक्सटर्नल हमेशा, तो चूंकि आपका इंटरनल आपका ज्ञान है नहीं, आप एक्सटर्नल हमेशा आप रॉन्ग पॉइंट पे, आप आपका नहीं हो पाता, एक्सटर्नल नॉलेज लेने के बावजूद भी आपका काम नहीं हो पाता, बिकॉज आपका इंटरनली आप वीक है, इंटरनल आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पर किस पोजीशन में आप हैं, आपको इंग्लिश सीखनी है बट आपको पता नहीं कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ नहीं करते। यूट्यूबर्स, इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेने के बाद भी आपको नहीं पता लग पाता, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू जज यू, और जजमेंट भी ऐसी होती है ना जिसमें सिर्फ इन्फ्लुएंस, उसमें सिर्फ आपको
ये बताई जाती है कि आपको ये नहीं आती, आपको ये नहीं आती, आपको ये नहीं है, ये एडवांस कोर्स है, ये बेसिक कोर्स है, आप यहाँ एडमिशन लीजिए, आप वहाँ एडमिशन लीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल जो आपकी प्रॉब्लम है वो न खुद जानते हैं आप, न वो जानता है, और सिर्फ ये प्रोसेस चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। तो नहीं होता है ऐसे। आपको टाइम देना पड़ेगा। इट्स अ लैंग्वेज, ये टाइम मांगती है। आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू बी इमर्स्ड टोटली, देन इट विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। मैंने कहा ना कि इसकी वैल्यू फर्स्ट समझनी होती है, आपको नीड समझनी होती है, वैल्यू समझनी होती है, उसके बाद आप इंपॉर्टेंस इसका समझेंगे, फिर आप इसमें टाइम देंगे और आपको टाइम सपोर्ट करेगी इन चीज़ों को अचीव करने में। कोई भी चीज़, लर्निंग इंग्लिश ही नहीं, सारी चीज़ ऐसी ही होती है। मैं यूट्यूब चैनल मैं भी बनाता हूँ, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली सी मैं यूट्यूब पे आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। यूट्यूब में वीडियोस बनती है इंग्लिश का, लेकिन फिर भी इतने कम रेशियो है इंग्लिश बोलने वाले का, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले का, फिर भी लोग सीख नहीं पाते हैं। बिकॉज कमेंट्स देखो ना, किसी यूट्यूब चैनल का, किसी भी यूट्यूबर जो इंग्लिश सिखाते हैं उनका जरा उठा लेना कमेंट्स, उसे कमेंट्स पढ़ना, 10 कमेंट्स पढ़ना, उसमें आपको लगेगा ना कि कमेंट्स में पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा ना कि कोई सीखना तो चाहता नहीं। आप भी तो एंटरटेनमेंट ही करने आते हो, सीखना कौन चाहता है यहाँ पर? यूट्यूब पे तो आता है लोग एंटरटेनमेंट करने, सीखना थोड़ा ना आता है। यूट्यूब में मैम पढ़ा रही हैं, मैम कितनी सुंदर है, मैम कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी सेक्सी हैं, तो ये चीज को, इसके बारे में ज्यादा कमेंट्स होते हैं। मैम जो बताई है ना वो मेरे को समझ नहीं आई, और उस चीज को मैं रिक्वेस्ट करूं कमेंट में कि मैम आपने जो बताया ना ये मेरे को समझ नहीं आया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट वीडियो आप बनाइए ताकि मैं समझ पाऊँ। मुझे ऐसा कमेंट नहीं मिला आज तक। अगर आपको सीखनी होती ना तो इस तरह के कमेंट आप करते हैं, इस तरह कमेंट नहीं करते हैं कि हाय क्या एक्सप्रेशन है, मैम की एक्सप्रेशन। यहाँ पर लास्ट वाला जो सेंटेंस मैम बोली और वो जो उनका एक्सप्रेशन था, मैं तो फिदा हो गया। ये होती है कमेंट। ये इंग्लिश सीखी जा रही है ना और सिखाई जा रही है, तो ये चल रहा है कुल मिला के तमाशा। तो कहाँ से आप इंग्लिश सीखेंगे? आपका सेंटर में कुछ और बैठा हुआ है, राइट? आपके सेंटर में कुछ और बैठा हुआ है, तो आप इंग्लिश या कुछ और भी जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं, आपका सेंटर में वही होता है। आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन भर अंग्रेजी ही सीखते रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इसका एक ट्रिक है कि आप कैसे इंग्लिश को, इंग्लिश में आप समय देंगे। आप इसको ऐसे मैनेज करें कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप हिंदी को साइड करें, ठीक है? और जो भी आप काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप सीखते हैं, उसका मीडियम आप इंग्लिश कर दीजिए। मतलब आपको सीखनी है इंग्लिश में, राइटिंग करनी है, लिखना है इंग्लिश में, सीखना, लिखना, बोलना, ठीक है? ऐसे लोगों से आप संपर्क में जाएं जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। आप यूट्यूब में कोई अगर वीडियोस देखते हैं तो आप इंग्लिश में देखें। मतलब ये हुआ ना कि इंग्लिश की सराउंडिंग आपको बनानी पड़ेगी, कोई आएगा नहीं आपके लिए। You have to manage, you have to create your own surrounding, you have to uh, make contacts। तो आपको करनी होगी, बिकॉज यू नीड इट, तब होती है। और उसमें भी इसमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट? तब जाकर के 6-8 महीने बाद आप अगर कंसिस्टेंटली अगर आप इसमें लगे रहेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ऐसे ही होता है। साथ साथ आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आप बुक्स पढ़िए। आप कितना, आप 6 महीने से लगे हुए हैं किसी इंस्टीट्यूट में आकर के, या किसी यूट्यूबर को पकड़ के आप लगे हुए हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप 6-8 महीने, साल भर से आप लगे हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे को नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आपने कितने बुक्स पढ़े? आपने कितने इंग्लिश का अच्छी किताबें पढ़े आपने? आप उसमें से कितना पढ़े? आप बुक्स पढ़ना भी एक, इसमें टेक्निक होती है अगर लैंग्वेज सीखनी है तो। बुक्स ऐसा नहीं कि आप बस बुक्स उठाया और पढ़ लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। बुक्स, आप कोई एक बुक उठाइए और उसका एक पेज, जस्ट यू रीड दैट, एंड इन वन पेज इफ देर आर 20-30 sentences, then you have to read all those 20 sentences, right? And not only reading but आपको उसे
समझना होगा कि उसमें सेंटेंस कैसे फ्रेम किया हुआ है, और उसमें किस तरह से सेंटेंस की वर्ब्स, किस तरह से उसमें एडवर्ब्स, किस तरह से उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, क्योंकि एक ही वर्ड का कई मीनिंग होता है। और मीनिंग आप डिक्शनरी से रट करके आप नहीं सीख सकते हैं। आप किसी भी वर्ड का मीनिंग आप सीख सकते हैं जब उस वर्ड को एक पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हुए आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बिकॉज़ वहाँ पे ग्रामर नहीं है। किसी भी बुक को आप जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ ग्रामर नहीं है। वहाँ पे क्या है कि बनी बनाई सेंटेंसेस 20 30 50 सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं एक पेज में, बनी बनाई हुई सेंटेंसेस। अब बनी बनाई सेंटेंसेस में आपको ग्रामर नहीं सीखनी है, आपको सीधा से सीधा रेडीमेड सेंटेंसेस है। वहाँ पर आप जस्ट यू लर्निंग देम, यू रीडिंग, और आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे ये सेंटेंस यूज हुआ है, कैसे इसमें वर्ब्स को यूज किए गए हैं, किस तरह से नाउन यहाँ पे यूज हुआ है, यही वर्ब यहाँ आके नाउन बन गया, यही नाउन यहाँ आके वर्ब बन गया। तो ये सारे चीज आप जब बुक्स को पढ़ेंगे, कंटेंट के साथ साथ सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर हो रही है उसको भी किस तरह से वो बदल रहा है, वो सारी चीज को जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, और ये हैबिट डालेंगे अपने आप में कुछ महीनों कुछ साल के लिए, तो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। देन यू विल बी एबल टू स्पीक। और जैसा मैं समझता हूं कि अगर 20 सेंटेंसेस एक पेज में है और 20 सेंटेंसेस को आप पढ़ लेते हैं, उस 20 सेंटेंसेस को आप अपने से लिखिए, बिकॉज यू डोंट हैव एन एनवायरनमेंट, राइट। तो अब आप क्या करें कि आप उसको खुद से लिखिए। बोलने का माहौल आपके पास है नहीं, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा। आप नोटबुक उठाइए और उसको लिखिए। तो निश्चित 20 सेंटेंसेस में से आप 10 या 15 सेंटेंसेस तो आप लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे उसको। तो 10 सेंटेंसेस में 20 में से आप 50% भी, अगर 10 सेंटेंसेस भी आप लिख लेते हैं, तो 10 सेंटेंसेस अगर आप अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं, तो निश्चित आप पांच नहीं भी पांच तो कम से कम 2 सेंटेंसेस आप बोलने के लायक हो जाएंगे। डू यू अग्री? 20 सेंटेंसेस आपने पढ़ा किसी बुक में, और 20 सेंटेंसेस को मैं कह रहा हूं कि अपने शब्दों में, गलत सही जो भी है, आप उसको लिखें, क्योंकि आपको बोलना नहीं है, अभी बोलने नहीं आता आपको, आप उसको लिखें। और जब आप लिखेंगे, तो 10 सेंटेंसेस अगर आप लिख पाते हैं, तो 10 सेंटेंसेस में से आप 2 सेंटेंसेस आप जरूर बोल पाइएगा। बस क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप लिख रहे हैं ना, उसमें आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग आपके दिमाग में चल रहा है, मतलब आपका माइंड फंक्शन कर रहा है सेंटेंस फ्रेमिंग पे। तो सेंटेंस फ्रेमिंग तो आपको धीरे 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 आ गई, बस बोलना ही तो बाकी रह गया ना, बस जुबान खोलनी है। तो 10 सेंटेंसेस आपकी फ्रेम हो चुकी है माइंड में, बस उसको बोलना है। और मैं 10 भी नहीं कर रहा हूं, मैं रेशियो 2 ले रहा हूं। कितना हुआ? 20-25% हुआ। तो 2 सेंटेंस ही आपको बोलनी है। अब 2 10 अगर लिख पाइएगा तो 2 जरूर बोल पाइएगा। तो ऐसे कर करके काम करनी पड़ती है दोस्त, किसी भी चीज के लिए। ऐसे नहीं होता कि भाई हम यूट्यूब का एक वीडियो देख लिए और हमें इंग्लिश आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। फैक्ट यही है कि थोड़ा समय देना पड़ता है। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग दैट यू वांट टू अचीव इट, then you will value it. After that, your time will start supporting you. You cannot jump and directly start managing your time. That is what you have been doing for so long. टाइम मैनेजमेंट, रूटीन एक्शन, आपने रूटीन बना लिया कि मैं इतने बजे इतना ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा। नहीं हुआ ना फिर भी अभी तक आप रूटीन को नहीं करते हैं फॉलो, आप उसको फॉलो ही नहीं करते बिकॉज आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। आपको हमें पढ़ाई करनी है, हमें ये चीज करनी है, हमें ये कंपटीशन निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्यों निकालनी है भाई? क्योंकि सब कर रहे हैं? नहीं, तब नहीं आएगा, तब इंटरेस्ट आपका नहीं होगा। आपकी अपनी डिसीजन होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि चाचा जी का लड़का कर लिया, इसलिए नहीं कि मामा जी का बेटी है वो आईआईटी कर ली अच्छे रैंक से, तो मैं भी करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे करेंगे तो आप करते रहेंगे, ना अच्छी रैंक आएगी। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। आपको आपको करनी क्या है, आपके हिसाब से आपका अपना डिसीजन जब होता है ना, अपना डिसीजन होता है किसी भी एक्शन के लिए, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि टाइम को भी मैनेज करें। टाइम को भी मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए, उतना नहीं टाइम होगा आपके पास, क्योंकि आप ऐसा काम चुना है आपने ना, क्योंकि उसमें आपको पूरी तरह से इंटरेस्ट है, और आपने ऐसा काम चुन लिया ना कि उस काम को ही आपने जीवन मान लिया। यू हैव बीन टोटली इमर्स्ड इनटू इट। आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, किसी मोटिवेशन इंस्पिरेशन नहीं। कुछ नहीं होता, बेकार की बात है, कुछ नहीं होता।
बस आपका चॉइस ऑफ योर वर्क शुड बी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, एंड इट शुड बी योर्स, नॉट समवन एल्स। ये नहीं कि भाई ताऊ जी ने कह दिया कि भाई ये कर लो तो मैंने वो कर लिया, ऐसे में नहीं कुछ होता, ऐसे में लोग करते भी नहीं है, और जबरदस्ती कर भी लेते हैं ना तो बड़े खराब परफॉर्मेंस होती है उनकी नौकरी लग जाने के बाद भी। तो इंग्लिश का भी यही चीज़ है, you will be able to manage time when you realize the value of it. So try to understand the value and try to understand first what is your need. Only then you will be able to do. Okay, and you will crack. और YouTube में आप YouTube के माध्यम से आप सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन YouTube के माध्यम से आप नॉलेज बढ़ाइए, आप सीखिए। मैं बनाता हूँ, आप अ, अगर आपको चैनल, देखिए मैं YouTube में बनाता हूँ वीडियोस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ फेमस होने आया हूँ, या मुझे इसकी कोई शौक नहीं है, फेमस हूँ नहीं हूँ, पैसा न कमाना न। देखिए YouTube एक प्लेटफॉर्म है, और आपको लोगों ने, यूट्यूबर्स बहुत सारे लोग इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, और आपको अगर कुछ अभी तक फ़ायदे नहीं हुए हैं, लेकिन उनका तो हो गया, उनका तो मोटी रकम आती है, उनका तो हो गया, इंस्टीट्यूशंस का भी हो गया, सबका हो जाता है, बट आपका क्यों नहीं हुआ? बिकॉज you haven't started realizing it. Realization is a must. ठीक है, आप रियलाइज नहीं किया अभी, आप अभी तक, तो वो आपने किया ही नहीं, और तो उनकी तो मोटी रकम हो गई, उनकी तो बात बन गई। और जैसे मैं भी यूट्यूब बनाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बनाता हूँ, मेरा एक्सपर्टीज है, मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपर्टीज शेयर करता हूँ। दैट्स द रीजन आई हैव कम टू आई हैव जॉइंड द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं लोगों से अपना एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैं फेस टू फेस तो नहीं हूँ, लेकिन आप बोलिए, आप बुक्स पढ़िए, आप न्यूज़ सुनिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जितना भी हो सके पढ़िए, सुनिए, पढ़िए, सुनिए। सुनिए क्या? इंग्लिश, इंग्लिश में सुनिए, इंग्लिश को पढ़िए, कुछ भी लिखा हुआ है इंग्लिश में उसको पढ़िए, कुछ भी आ रहा है उसको सुनिए इंग्लिश में, सुनिए, पढ़िए, सुनिए, पढ़िए, और फिर लिखिए। और जब इतना करेंगे ना, निश्चित आपको अंदर से ही लगेगा ना कि यार मैं ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ। कोई नहीं है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई किसी की हेल्प, मुझे नहीं चाहिए किसी को। यहाँ पर सराउंडिंग जहाँ पे आप रहेंगे ना, वहाँ पर 10 लोगों को पहले तो अंग्रेजी क्या, हिंदी ठीक से नहीं बोलनी आती, वो क्या आपको इंग्लिश में माहौल देगा? डू नॉट डिपेंड नहीं होंगे माहौल पर आप, सबको जस्ट forget them. You start speaking and stand in front of mirror, रिकॉर्ड कीजिए उसको। मेरा मेल आईडी दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आप मेल आईडी पे आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं उसको सुनूंगा, मैं उसको फीडबैक दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से आप काम कीजिए। थोड़ा इसमें लगना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तब जाकर आपकी लैंग्वेज एक अच्छी हो जाएगी। या ऐसे नहीं होता। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और कोई पैसे वैसे की बात को लेकर के, मेरा सब्सक्राइबर्स जितने हैं, मेरा तो 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है अभी, राइट, इट इज़ फाइन, राइट, आई एम क्वाइट ओके विद दैट, आई एम नॉट क्रेजी ऑफ इट। मैं आई एम नॉट क्रेजी फॉर दिस कि मुझे नहीं, आई नीड सब्सक्राइबर्स इन लैक्स एंड करोड्स, नो 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 नो, बिकॉज आई हैव टू मेक मनी। मैं यहाँ पर मनी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ, ठीक है। मनी, हेलो, यूट्यूब का जो जो मुझे ये अभी ऐसे भी एजुकेशनल चैनल है, आई एम नॉट हाफ नेकेड एंड फ्लॉन्टिंग माई बॉडी, राइट, एंड जस्ट स्टार्ट डांसिंग, सो आई एम नॉट लाइक दैट, ओके, सो आई एम नॉट मेकिंग दो सॉर्ट ऑफ वीडियोज। उसके बहुत पैसे मिलते हैं, ये एजुकेशनल चैनल है, इसके बहुत पैसे नहीं मिलते। इसको अगर अगर ये वायरल हो भी जाता है कभी, खुदा न खास्ते नहीं होता है, हो जाए, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये हो भी जाता है तो बहुत मिनिमम, बहुत ही न्यूनतम राशि मिलती है इसकी, और उतना राशि में मेरे बच्चे का डायपर का कॉस्ट भी नहीं आएगी। राइट। तो अर्निंग सोर्स मेरे बहुत है, मैं अर्निंग के पीछे पागल नहीं हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अर्निंग के मेरे अलग सोर्सेज हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आया हूँ, इस पे आया हूँ इसलिए क्योंकि आपको कुछ मैं सिखा पाऊँ। यस, दैट इज माई मेन टारगेट। तो वो चीज़ है, या। और मेरे पास अभी 100 सब्सक्राइबर्स में नहीं है, विच इज़ ओके, आई एम क्वाइट ओके, आई डू नॉट नीड सब्सक्राइबर्स इन लैक्स, सो आई जस्ट नीड क्वालिटी पीपल, आई जस्ट नीड पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड, राइट, आई डोंट नीड स्टूपिड पीपल, no no no, if you're really interested you learn it, you're not interested, leave it, watch something else, fuck off,
I don't need stupid people, right? So be interested, be serious, be sincere, and then learn, right? Time will automatically be managed. There is nothing special in it. Just try to manage the value and the importance. Yeah. Thanks. Thanks for watching. Cheers.